Hello student, today we are going to discuss one of the most interesting topic of the first chapter, that is uncertainty in measurement. Dear students, in today's chemistry we have to deal a lot of experimental data as well as theoretical calculations. There are some meaningful ways to handle the numbers conveniently and present the data realistically with certain to the extent possibilities. Let's discuss one by one these ideas. First of all, we have to discuss scientific notation. If we talk about scientific notation, अगर हम बात करते हैं, अगर हम पहले पढ़ी हुई बातों पर ध्यान करें तो हमने पढ़ा है दैट इन केमिस्ट्री वी यूजुअली स्टडी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आपको पता भी है दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड दे आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर. दे हैव लो मास and they are present in large numbers. For example, if we talk about a number just like 6.02 200 comma 000 comma 000 comma 000 000 and so on. So you can see it's a very large number, and if you want to calculate a numerical or some other question by putting this value, it is very difficult to calculate. Another example, if we talk about the number of molecules in 2 gram of hydrogen, and this is about number of molecules, and if we talk about its mass, so we will see we will get a value 0.00000000000 many zeros, and then in last 166 gram. You can see that calculating a question with the help of these numbers is very difficult. So there are some other constants also, like Planck's constant, speed of light, charge on particles, and etc. These are values which is very difficult to write in their proper form, in the complete form. It is very difficult to write them and to have a calculation on them. So, and it also look very funny if you write it this. So to avoid this kind of situation, इसको avoid करने के लिए we have to come with some other options, some other methods of writing these things, and to do so we have a method that is scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन से हम इसको लिखना शुरू करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं. करते क्या है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं. वन इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है, इसकी दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एंड द फॉर्म इट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है इसकी, इसको लिखते हैं हम फॉर एग्जांपल 10 लाइक 9 इंटू 10 टू पावर n इंटू 10 टू पावर n. इस फॉर्म में हम किसी भी वैल्यू को लिखते हैं साइंटिफिकली, जहाँ पे जो आपका स्मॉल n है, एक्सपोनेंट है ये, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज़ हो सकती हैं. कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू. Capital N is a digit, it's a simple number whose value vary from 1.00 to 9.999 etc. इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू राइट
232.508 in scientific form, then you have to write it like this: 2.32508 into 10 to power 2. If we have to move decimal toward left side, then we will raise the same number of power on 10, whatever be the number that we have, drag the decimal to the left side, and if we drag it to left side, the value should be positive. For example, यहाँ पे हमने 2 रखा है क्योंकि हमने 2 डिजिट से डेसिमल को लेफ्ट साइड में खिसकाया, लेफ्ट में खिसकाया तो पॉजिटिव, और जितने डिजिट हम खिसकाते हैं वही एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम उसको ऊपर राइज कर देते हैं। ऐसे ही इन द सेम वे आप 0.00016 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम 1.6 डेसिमल से पहले डिजिट होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू पावर। अब हमने डेसिमल को 1 2 3 4 डिजिट राइट साइड में खिसका है, तो राइट साइड का मतलब माइनस, एंड कितना 4 डिजिट टू पावर 4। ये दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग लॉन्ग वैल्यूज और वैल्यूज इन द साइंटिफिक नोटेशन। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। आफ्टर दैट इसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और आती हैं कि इनकी नोटेशन की हम आगे फर्दर कैलकुलेशन में इनको कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए हम एक एक करके मेथड इसके डिस्कस करते हैं। सो हमारा जो पहला मेथड है जिसमें साइंटिफिक नोटेशंस की कैलकुलेशन आपको दिखाई जाएंगी, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम इनकी देखेंगे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, इफ़ वी मल्टीप्लाई, यू मस्ट अंडरस्टैंड द रूल्स। 5.6 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 टू पावर 8। If we talk about multiplication of two scientific notations और scientific values की अगर हम बात करते हैं, then in multiplication what we have to do, we have to put first values in one section, 5.6 into 6.9, and in other values अगर base same है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। सो 10 टू पावर 5 प्लस 8, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 5.6 इंटू 6.9 होता है 38.64 इंटू 10 टू पावर 13। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं देन इट विल बिकम 3.864 इंटू 10 टू पावर 14। दिस इज द एग्जैक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टू वैल्यूज इन साइंस एंड ऑल्सो राइटिंग। लिखने का भी और कैलकुलेशन करने का भी ये एक बेस्ट मेथड है। उसके बाद अगर आप बात करें डिवीजन की, फॉर एग्जांपल 2.7 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10 टू पावर 4। इसकी अगर हम बात करें, लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। सो हम कैसे कर सकते हैं, 2.7 डिवाइड बाई 5.5 इंटू एक वैल्यू, पावर्स को हम अलग ब्रैकेट में रखते हैं, 10 टू पावर -3 एंड 10 टू पावर 4 जो डिवाइड में है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -4 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.4909 इंटू 10 टू पावर -7। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इसी तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए। जो किसी भी टू वैल्यूज़ की अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो 10 की पावर होती हैं दे मस्ट बी सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ आप नोट कर लें,
power must be same. For example, if we have to add 6.65 into 10 to power 4 and 8.95 into 10 to power 3, if you want to add these values, then we have to convert this 8.95 into 10 to power 3 into 10 to power 4 or this value to 10 to power 3. So to do so, what we have to do, we have to shift decimal toward left side. So 6.65 into 10 to power 4 प्लस एक पॉइंट से हम डेसिमल को लेफ्ट में खिसकाएंगे 0.895 इंटू 10 टू पावर 4. इस टाइप से ये वैल्यूज़ हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 10 टू पावर 4 हम कॉमन रखेंगे. 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10 टू पावर 4 और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 7.545 इंटू 10 टू पावर 4. इज द मेथड ऑफ एडिशन फॉर साइंटिफिक नोटेशन. बात करें इन द सेम वे सब्सट्रैक्शन की. सो इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 टू पावर -2, इसमें से want to subtract 4.8 इंटू 10 टू पावर -3. अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं then we have to convert this value to the 10 to power -3 to 10 to power -2. So how can we convert it? 2.5 into 10 to power -2 minus 0.48. एक पॉइंट से डेसिमल हम लेफ्ट से खिसकाएंगे तो 10 की पावर राइज हो जाएगी. माइनस में राइज का मतलब है कम होना, 10 टू पावर -2 इंटू दिस. इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10 टू पावर -2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 2.02 इंटू 10 टू पावर -2. दिस विल बी द आंसर. दिस इज द मेथड्स ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन. तो स्टूडेंट, हमने 4 मेथड डिस्कस किए साइंटिफिक नोटेशन की. जब हम कैलकुलेशन करते हैं फर्दर तो कैसे कर सकते हैं. हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिस्कस किए, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन. इसके बाद हमें प्रॉब्लम अराइज होती है. नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी वैल्यू को मेज़र करते हैं या किसी वेट को वे करते हैं तो उसको हम 2 तरीके से वे कर सकते हैं. एक, हम अगर वे करते हैं किसी को वेट को, फॉर एग्जांपल सिंपल बैलेंस या डिजिटल बैलेंस के ऊपर, तो हम उसका वेट निकल के आता है 9.4 ग्राम. और अगर हम उसी वे को एक एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर वे करते हैं तो उसका बैलेंस वेट निकल के आता है 9.4213 ग्राम. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारी डिटेल्ड स्टडी है, जो हम बैलेंस करते हैं डिटेल में किसी भी चीज़ को, तो वो स्लाइटली हायर आता है नॉर्मल बैलेंसिंग या डिजिटल बैलेंसिंग की वजह से. इसमें क्या होता है कि इसके अंदर फिर ये पता लगाना डिफ़िकल्ट है कि कौन सी वैल्यू सही है. उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट स्टडी करते हैं. इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार की वैल्यूज़ हम पढ़ते हैं. एक वैल्यू होती है मीनिंगफुल डिजिट, जिसकी हम सर्टेन वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता होती है, और दूसरी वैल्यू होती है जो अनसर्टेन होती है या जिसको हम एस्टिमेट करते हैं, पता लगाते हैं. तो इसके फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वैल्यू है 11.2, हमारे पास ml एक वैल्यू है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके अंदर 11 जो है वो एक सर्टेन वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है. लेकिन इसमें जो डेसिमल के बाद 2 है, दिस इज़ अनसर्टेन, ये फिक्स नहीं है. और इसमें मार्जिन ऑफ एरर की जगह है +-1. इस 2 में हम +-1 का मार्जिन लेके चल सकते हैं. तो इस टाइप से हम
देखते हैं कि एक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है उसमें अलग अलग जो नंबर्स होते हैं उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, उनसे अलग अलग हमें चीज़ों को जानने का पता चलता है। तो इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने फिगर किसी वैल्यू में इम्पोर्टेंट हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सभी जो नॉन जीरो डिजिट होती हैं सिग्निफिकेंट होती हैं। एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वैल्यू के अंदर कोई नॉन जीरो, कोई ज़ीरो नहीं है, ये सारी नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो कोई आपसे क्वेश्चन करे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 285, तो आंसर होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल 0.25 ml, यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हम नेक्स्ट रूल में डिस्कस करेंगे। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो 0 प्रीसीड करती हैं, पहले आती हैं, 0 प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। वे इनसिग्निफिकेंट होती हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल 0.03 हैज़ ओनली 1 significant figure. 0.0052 have only 2 significant figures. ये सेकेंड रूल है कि जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जितनी भी जीरो आती हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। आफ्टर दैट हमारे पास है रूल नंबर 3। थर्ड रूल क्या कहता है? 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई हमारे पास वैल्यू है, लिख लें पहले 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2.005, इसमें 2 नॉन जीरो डिजिट हैं 2 और 5, उनके बीच 2 जीरो हैं, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। यह 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रूल 0 एट द एंड ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। लेकिन इसके लिए एक रूल है साथ में कि दे आर must be on the right side of the decimal point. For example 0.200, इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, फॉर एग्जांपल 100, 100 हम लिखते हैं, इसमें अगर डेसिमल अगर हम नहीं लगाते हैं तो ये जो 0 हैं they will be insignificant and significant figure will be 1. लेकिन अगर हम बात करें 100 point, if we have a decimal then total number of significant figures will be 3. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेसिमल आ जाए तो 0 काउंट होती हैं, डेसिमल ना हो तो 0 काउंट नहीं होती हैं। इसलिए इनको बेटर होता है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना। अगर हम लिखें इसको 100 को 1 × 10⁻², अगेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर हम इसको लिखें 1.0 × 10⁻², अगेन देयर विल बी
two significant figures. So by this method you can see that how many figures are important or significant in case of a scientific notation. लास्ट रूल की अगर हम बात करें, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बनता है. इसमें लास्ट रूल क्या है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कि अगर कोई काउंटिंग है किसी भी नंबर, कोई भी नंबर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स, या हम बात करें 20 एग्स या 500 पेंसिल्स एटसेट्रा, तो अगर इस प्रकार की कोई काउंटिंग है तो उसके अंदर अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें तो दैट विल बी इनफाइनाइट. ऐसा क्यों इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 बॉल्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 बॉल्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन. सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज होते रहेंगे. सो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिखा, हमने साइंटिफिक नोटेशंस देख ली कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में जो टॉपिक स्टार्ट किया था अनसर्टेनिटी के बारे में मेजरमेंट में, अब हम बात करते हैं इन वैल्यूज़ में अनसर्टेनिटी कैसे होती है. या तो हम किसी भी कैलकुलेशन की हम बात करते हैं तो हम उसके अंदर 2 कंसेप्ट स्टडी करते हैं. एक होता है प्रिसीजन, P एंड एक्यूरेसी. प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में हमें पता होना चाहिए. So, इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले हमें ये समझना है. अगर हम बात करें प्रिसीजन की, देन प्रिसीजन मीन्स क्लोजलीनेस, और एक्यूरेसी तो आप जैसे जानते हैं एक्यूरेट, सही, एग्जैक्ट. इनको एक एक करके स्टडी करते हैं. प्रिसाइज की, प्रिसीजन की बात करें एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा. अगर हम बात करें प्रिसीजन की, फॉर एग्जांपल किसी कैलकुलेशन की या किसी एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट की आंसर है 2.0 और कोई स्टूडेंट उसके लिए रिजल्ट निकाल रहा है 1.95 एंड 1.93. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग है दैट कि वो स्टूडेंट प्रिसाइज तो है, प्रिसाइज मीन्स ये दोनों वैल्यू बिल्कुल पास पास हैं, इसलिए ये वैल्यू प्रिसाइज तो है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है बिकॉज वो सही आंसर से बहुत दूर है. लेकिन अगर दिस इज़ फॉर स्टूडेंट 1, लेकिन अगर एक दूसरा स्टूडेंट है स्टूडेंट 2 और वो 2 वैल्यूज़ निकालता है आंसर के लिए, 2 एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें उसकी 2 वैल्यू आती है 1.94 एंड 2.05. उसने 2 वैल्यू निकाली, तो इस रिजल्ट से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि वो ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ एक्चुअल आंसर से बहुत दूर हैं इसलिए एक्यूरेट नहीं है, और एक दूसरे से भी बहुत दूर दूर है इसलिए ये प्रिसाइज भी नहीं है. एक और तीसरा स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट जो है उसके रिजल्ट आते हैं 2.01 एंड 1.99. अगर इस स्टूडेंट की बात करें तो ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल पास पास हैं इसलिए प्रिसाइज है, और इन दोनों वैल्यू का जो एवरेज आएगा वो 2.0 आएगा इसलिए ये एक्यूरेट भी है. सो दिस इज़ अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. अगर अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन. तो अगर हम बात करें एडिशन, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बस एक रूल आपको ध्यान रखना है. फॉर एग्जांपल हम ऐड कर रहे हैं 12.11, 18.0, 1.012 एंड 31.122. तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाट यू शुड रिमेंबर, कि जो आंसर होगा
उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स that not be greater than the number of significant figure in the lowest value. जिस वैल्यू में क्वेश्चन में जिस वैल्यू में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए 31.1। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसमें भी यही रूल है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल 2.5 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 3.125। अगेन सेम रूल है कि जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमको रखने हैं। तो यहाँ पे हम अगेन आंसर लिखेंगे 3.1, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए आंसर में भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, कि कैसे लास्ट के डिजिट हम हटा रहे हैं तो उससे प्रीवियस डिजिट जो लिख रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा। तो उसके लिए हम जो टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज राउंडिंग ऑफ, कि कैसे लास्ट की कुछ वैल्यूज को हम रिमूव कर सकते हैं। सो देयर आर 3 बेसिक रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। दैट इज रूल 1, अगर जो राइट मोस्ट वैल्यू आप रिप्लेस कर रहे हैं, जो राइट मोस्ट वैल्यू जो आप हटा रहे हैं, सो इफ़ दैट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5, तो लास्ट डिजिट में हम एक नंबर बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल 1.386, इसको अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो लास्ट अगर कंसिडर हमें 6 को रिमूव करना है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हो दैट इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम इसको राउंड करेंगे तो ये 1.39 इसको लिखा जाएगा। सो दिस इज रूल 1। रूल 2 क्या कहता है, इफ़ द लास्ट वैल्यू इज़ लेस देन 5, फॉर एग्जांपल 1.384, और हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट, हमें 4 को रिमूव करना है लास्ट डिजिट को, देन इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा 1.38। अगर ये वैल्यू 5 से कम है तो इससे पहली वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, अगर लास्ट डिजिट हो 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उस टाइम पे 2 रूल फंक्शन में आते हैं, और एक वैल्यू है हमारे पास 6.25। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इस फर्स्ट वैल्यू में जो लास्ट नंबर है जिसे रिमूव करना है वो 5 है, और उससे पहले ऑड नंबर है। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ऑड नंबर शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1 प्लेस, 6.4 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर 5 से पहले इवन नंबर है तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। Today's last topic, that is dimension analysis. स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करने के कुछ फॉर्मूले लिखे थे। तो ऐसे जो कुछ यूनिट्स होती हैं जिनको एक दूसरे में चेंज करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड। इसको एग्जांपल से समझना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पीस ऑफ मेटल है 3 इंच लॉन्ग, उसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। उसको हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि आप जानते हो कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, 1 इंच डिवाइड बाई 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 इंच।
ये इसलिए 1 इंच अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 1 एंड 2.4 अपॉन 1 इंच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कहलाते हैं यूनिट फैक्टर्स। तो जिस भी वैल्यू को आपको चेंज करना होता है उसको इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और हमें यह ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको ऊपर रखना है और जो दी गई है उस वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है। सो इसलिए अगर हम बात करें 3 इंच, हाउ विल यू कन्वर्ट 3 इंच into centimeter? So it must be multiplied by 3 inch multiplied by 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो जिसको हमने निकालना है उसको वैल्यू को ऊपर रखना है और जो हमारे पास गिवन है उसको नीचे रखना है, क्योंकि हमें इसको भी कैंसिल आउट करना होता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 into 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर। दिस इज द वे बाय विच वी कैन चेंज वन वैल्यू इनटू अनदर। इसके बाद एक एग्जांपल है इसके अंदर, हाउ विल यू कन्वर्ट एग्जांपल 2। you have to convert 2 days into seconds। तो इसकी अगर हम बात करें कन्वर्जन की, जो एज यू ऑल नो 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 day अपॉन 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 24 आवर्स अपॉन 1 डे। ये दोनों यूनिट फैक्टर बन के आते हैं। इसके साथ साथ एज वी ऑल नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो वी कैन अगेन राइट 1 आवर अपॉन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 60 मिनट्स upon 1 hour. In the same way, as we all know that 1 minute is equal to 60 seconds, so we can also write 1 minute upon 60 seconds is equal to 1 is also equal to 60 second upon 1 minute. So what we have to do, we have to put all the 3 unit factors in such a way that we get only that unit which is required. So हम अगर इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसको लिखने का सही तरीका होगा कन्वर्ट करने का 2 day into, first of all we have to convert day into hours. 2 day is equal to, देखिए जो यूनिट हमें चाहिए उसको ऊपर रखना है, जिसको काटना है उसको नीचे रखना है। 2 day is equal to 24 hours upon 1 day. In the same way we have to cancel out hours. तो नेक्स्ट में हम लिखना है 60, this one 60 minutes upon 1 hour into 60 seconds upon 1 minute. ऐसे इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो डे कैंसल आउट बाय डे, आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट. So we will get 2 into 24 into 60 into 60 seconds, and answer will be 17,800 seconds. Dear student, our next topic will be law of chemical combinations. These laws you have already discussed in your 9th class, but there are some laws like law of conservation of mass, definite proportions that you have discussed in 9, but we will have some 2-3 more laws like law of multiple proportion and Avogadro law or Gay-Lussac law in this section. So in our next video we are going to discuss those ones. Thank you.